मैं कर्नल गौरव दत्ता फ़ौज में पैदा हुआ। मेरे फादर भी फ़ौज में ही थे और उसके बाद 1991 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी से मैं कमीशन हुआ। क्योंकि ये मेरा पैशन था तो मैं फ़ौज में ही काम करना चाहता था। बचपन से ही खेलने का बहुत शौक़ था। बहुत सारे गेम्स, जो भी एडवांटेज हमको आर्मी में रह के मिलती है हर स्पोर्ट्स की, वो मुझे मिलती रही और मैं नए गेम सीखता रहा। 2001 जुलाई में हम लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर में थे और वहाँ पर एक दिन हम एम्बुश लगाने के लिए गए, मैं और मेरी टीम, जिसके दौरान मेरा पैर एक एंटी पर्सनल माइन पे आया और मेरा लेफ़्ट लेग इंजर्ड हो गया। मेरे इवैक्यूएशन में काफ़ी समय लगा क्योंकि हम काफ़ी दूर थे रोड हेड से। तकरीबन हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते 11.5 घंटे लगे और काफ़ी खून बह गया था। I received a call on July 7th, 2001, and my husband's voice was crisp and strong, and I was so excited to hear his voice. But there was this nagging feeling at the back of my mind, and I said, "Where are you?" And he said, "Oh, there's been a little incident and I've got hurt." So it sounded very normal, he being accident prone. And he then in the same breath said, "I've lost a leg. I've lost my leg." And it was like unbelievable because he was sounding very fine to me. And this happened. But I said, "He's fine." And that's more important to me. He's alive. And we'll get through this. 10 महीने मैं कमांड हॉस्पिटल पुणे में रहा, जिसके दौरान सोचने का, ज़िंदगी आगे कैसे जीनी है, बहुत मौका मिला। इस दौरान आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर पुणे, जो कि अभी अपनी 80th एनिवर्सरी मना रहा है, वहाँ पर हमारे प्रोस्थेटिक लिम्ब्स की फिटिंग की जाती है। जितने भी आर्म फोर्सेस के सोल्जर्स इंजर होते हैं वहाँ आते हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि वहाँ सिविलियंस के लिए भी, नॉन मिलिट्री पर्सनल के लिए भी फैसिलिटी है, वो भी वहाँ जा सकते हैं। वहाँ मुझे एक प्रोस्थेटिक लिम्ब दिया गया और प्रोस्थेटिक लिम्ब के साथ साथ मुझे चलना कैसे है ये सिखाया गया। अब सोचना बहुत आसान है कि ठीक है, अब आप चल रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक शरीर का अंग जाने के बाद आपकी ब्रेन को रीएडजस्ट करना पड़ता है और एम्पुटेशन के बाद चलना सीखना वैसे ही है जैसे एक छोटा बच्चा बचपन में चलना सीखता है। पर खिलाड़ी होने की वजह से, गिरने का डर ना होने की वजह से मेरे मन में वो आशंकाएं नहीं थी कि अगर मैं गिर जाऊंगा तो क्या होगा। तो जो चीज़ चलना सीखना लोगों को काफ़ी समय लगता है, मुझे ज़्यादा समय लगा नहीं। 1-2 बार गिरा, लेकिन क्योंकि डर नहीं था मैंने थोड़ा जल्दी चलना सीख लिया। और आज अगर आप मुझे देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरा एक पैर आर्टिफिशियल है। So it was a month from the time the incident took place, and he was in Pune. I joined him, and that's when I think my fears of what is life going to be all started coming up, and I had nobody to talk about. I had to be the strong one for the whole family, and also be strong for my husband, which was very important. And so I started surfing the net, and I found that there was no support group in India where I could talk to someone. And then I found a support group in Canada, and an old gentleman who was running it, Dan Sorkins, he answered all my questions. And that's how most of my fears were getting over. Not just the person who loses a limb or a body part who is going through the trauma, it's the family, it's the caretaker. I started Indian Amputees, a support group, and a few doctors gave their time, like a surgeon, orthopedic surgeon, a prosthetic engineer, a counselor, and we would have meet people who were going through the similar situation, their families, and
We were able to communicate, counseling was done, and people were very happy. It was like a healing process, not just for them, but also for me. A few people, journalists covered what I was doing. So it was something like people who read about what I was doing joined, they came, they wanted to see, and we were like a family. We were sharing information, feelings, which I found that you are able to relate. Being a caregiver myself, I came to realize that it's not just the person you're taking care of, you have to take care of yourself. So it means you have to move for some time, do the things you used to do, enjoy, because you can't, being selfless and taking care will take its toll, and it will affect your relationship with the person you. So this is very important. I want to tell every caregiver, please love yourself and take care of yourself as you are doing to the person you're taking care of. कमांड हॉस्पिटल पुणे के 10 महीनों में बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो हम सोच रहे थे। मेरे साथ वहाँ 8 और ऑफिसर्स थे जो एम्प्यूटीज़ थे। किसी की नौकरी सिर्फ 3 महीना थी और किसी की सिर्फ 3 साल। तो बहुत सारे सवाल थे, क्या करें, कैसे करें, अपना समय कैसे निकालें। रात रात दर्द के कारण नींद नहीं आती थी। तो हम लोग दिन में वो गली क्रिकेट याद रहा सबको, तो गली क्रिकेट खेलते थे वरांडा में। और किसी को आइडिया आ गया कि हम फुटबॉल क्यों नहीं खेल सकते सर। तो वार्ड के अंदर, क्योंकि वहाँ पानी नहीं होता है, सूखा हुआ है, तो हम लोगों ने क्रचेस के ऊपर ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। तो मेरे मन में आया कि हाँ ठीक है, इंजरी तो हो गई, पर अब अगर हम ये छोटे छोटे गेम खेल सकते हैं, यहाँ खेल सकते हैं, तो हम बाहर क्यों नहीं जाके मैं खेल सकता। तो मैंने हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा गोल्फ खेलना शुरू किया। मेरी इंजरी के बाद जो प्रोस्थेटिक लिम्ब मुझे मिला था, उस समय वो बहुत ही बेसिक लिम्ब था। अब क्योंकि मैं गोल्फ खेलना चाहता था, मैंने आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर में बात की, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपको एक अच्छा सोफिस्टिकेटेड लिम्ब भी दे सकते हैं, पर हम शुरू में नहीं देते हैं क्योंकि आपने अभी चलना सीखना है। अब आप एक अच्छे सोफिस्टिकेटेड लिम्ब देने के लिए तैयार हो। तो जो आज लिम्ब मैं पहने हूँ, मुझे आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर ने दिया। काफ़ी सोफिस्टिकेटेड इसमें कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और बहुत ही कंफर्टेबल लिम्ब है। मैं इसे 4 साल से पहन रहा हूँ। गोल्फ ऐसा गेम था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, और स्विमिंग एक ऐसा गेम है जिसमें डिसेबल्ड इंसान की बॉडी पे कोई प्रेशर नहीं होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन दोनों गेम्स में दोबारा कोशिश करूं। तो 2009 में इंडिया में इंडियन व्हीलचेयर एम्प्यूटी स्पोर्ट्स बेंगलोर में कंडक्ट हुए, जिसमें मैंने और हमारे आर्मी के 2 और ऑफिसर्स ने पार्ट लिया। मैं ब्रोंज जीता और हम 3 गोल्ड मेडल जीते। 2018 में आर्मी पैरालंपिक नोड रेस किया गया, जिसका मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ रेस करने का। और अगले 4 सालों के अंदर आर्मी पैरालंपिक नोड के खिलाड़ियों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया, बहुत मेडल जीते, और उन लोगों की जो परिवार थे, उनकी खुद की जो आकांक्षाएं और उनके सोच विचार थी, उसमें बदलाव देखने को मिला। वही जवान जो पहले बोलता था कि साहब अब हम किस काम के, अब तो लंगड़े हो गए, अब तो गांव में खेती कैसे करेंगे साहब, कौन हमें पूछेगा, हम तो परिवार पे बोझ हो गए। आज उस जवान की टेलीविज़न पे फ़ोटो आती है, सोशल मीडिया में सब जगह वो दिखाई जाता है, उसका परिवार फ़ख्र करता है, पूरी इंडियन आर्मी को उसके ऊपर गर्व है। और वो जो सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, अब एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी जी रहा है और बहुत ही साहस के साथ जी रहा है।